same situation. One rides the wave and one gets crushed under the wave. What determines that? इतने सालों से महिलाओं को वो स्थान इस इंडस्ट्री में नहीं मिल पा रहा था। क्या पूछना है, किसको पूछना है? So it was a learning experience for me personally, and I'm really happy that I was invited to be the jury at this award. So I would like to thank Ibja, Prithviraj, Chetan Bhai, Surendra Bhai, and Hira Zadarat team for inviting me. And also I wish all the winners hearty congratulations, and all the other participants all the best for the coming year. Thank you so much. Congratulations, Hetal, for having such a nice and splendid event. I'm excited to be part of this, where we are celebrating women from various walks of this industry. Some are influencers, retailers, manufacturers, wholesalers. So it's nice to know. My parents got divorced when I was 5 years old. Back then, when divorce was a stigma. My mother was very bohemian. You go to school and you hear people saying, my mother says, your mother is so shocking, right? And you have a mother who's a classical dancer. Doesn't earn very much being classical dancers back in those days. And we were reprimanded for wasting even the tiniest bit of tomato ketchup on our plates. My father, on the other hand, had a wonderful life internationally. He wore, the best designers, he traveled well, he shopped well, and we kind of oscillated between these two wonderful realities, both wonderful in their own ways. My mother is the kind of person who could sit in a hut with a tribal and be just as at ease as she was with the president of a country sitting and regaling them with, great stories. I went to a boarding school at age 12, a military boarding school, very tough. 100 girls in the dormitory, bed locker, bed locker, bed locker, wake up at 6 a.m. with a rouser, 3 baths a week. 2 baths were body baths, 3 minutes each. 1 bath was a head bath, 5 minutes. Out you go. So I come back, I go to America, I study, I come back, and my mother tells me that she's heading off to start her dream, Nityagram, in Bangalore. And I am basically left to fend for myself, in a sense, at age 18. And I start earning my own living at age 18, and I don't take a penny from my parents ever since. So it's not that, and I've never ever asked my father to get me a role, to even make a phone call. It's been a journey about me, for me, with the love and emotional strength and support of the years and the thoughts and the processes that made me who I am today. And so when you look at a person, it's so easy to see the glitter and the glamour and the gloss, and it's very easy to see that I was a part of the film industry and that I'm standing here today in beautiful jewels and I look a certain way and I speak a certain way. But everybody has their story. And shit happens. And we all think that it's exclusive to us. And we all think that our pain is greater than the pain of others. The fact is, it's all the same. We are all going to deal with the death of a loved one. We are all going to deal with heartbreak. We are all going to deal with financial pressures, financial stresses, business failures. It's everybody's journey. It's not exclusive to any one of us. What is exclusive to us is how we handle it. That is a choice we can make. We cannot choose what happens to us. 2 people in the same situation. One rides the wave and one gets crushed under the wave. What determines that? Your attitude. Your attitude determines your altitude. Martina Navratilova was asked how she played such an amazing game of tennis in her 40s, and she said, the ball doesn't know how old I am. And she said that the entire game of life is played not on the tennis courts, not in your boardrooms, not in your homes, not in the life outside. The entire game of life is played in 6 inches. This. The area between your ears. Everything in your life happens up here. You are a result of your programming and nothing more than the result of your programming.
पूछना है? किसको पूछना है? गोल्डन गर्ल। देखिए, अवार्ड्स जो है बहुत अहम होते हैं, क्योंकि अवार्ड्स के जरिए जो अवार्डी होते हैं उनको इंकरेजमेंट मिलती है, जो उनको देखते हैं उनको इंस्पिरेशन मिलती है। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग जो बहुत मेहनत करते हैं, इंटेग्रिटी दिखाते हैं, टैलेंट दिखाते हैं, कि हम उनको फेलिसिटेट करें, अवार्ड दें, ताकि इट जस्ट बिल्ड्स दैट कॉन्फिडेंस एंड इट बिल्ड्स अ bunch of people, it builds a community. So I'd really like to thank Ibja and of course darling Hetal here, who's put this together, and congratulations to all the winners and to all of those who want to win next time. Well, where there's a will, there's a way. Always. ये Yeah. अवार्ड्स था, ये 11 लोगों को दिया गया, जी। 4 वुमेन्स थे। Yes. कितना मोटिवेट करेगा इस तरह के अवार्ड्स और कितना यूनिक है अवार्ड्स बाकी अवार्ड से? बेसिकली हमने इस बार एस्टैब्लिश्ड लोगों को नहीं दिए अवार्ड्स, ऐसे लोगों को दिए हैं जिनको अब तक कोई रिकग्निशन नहीं मिली है, और उनको प्रोत्साहन के रूप में हम लोगों ने इधर अवार्ड्स दिए हैं। तो ये सभी महिलाएं अपने रूप में अलग है, बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन कभी उनको रिकग्निशन नहीं मिली है, कभी वो ऑनर नहीं मिला है। और एज शी राइटली सेड कि सक्सेस अगर हमें मिले और उसका लोग मान रखें, सो अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, और इट गोज़ अ लॉन्ग वे एज अ मोटिवेटर। तो हमने ये इब्जा गोल्डन गर्ल अवार्ड इसीलिए रखे हैं अलॉन्ग विथ हीरा जवेरात, कि भाई ये लोग आएँ, यहाँ उनको ऑनर किया जाए, सम्मानित किया जाए, और लोगों को ऐसे प्रोत्साहन मिले कि वो अगले साल, अगर ये साल हमारे पास 102 नॉमिनेशंस आए हैं, तो अगले साल वी हैव मेनी मोर। मैम, ये कहाँ से ये लोग आए थे जो आर्टिस्ट? इंडिया, पैन इंडिया, कई सेलम से है, कोई कोयम्बतौर से है, गुवाहाटी से है, बम्बई से है। तो हमने ये हमारी ये कोशिश रही है कि केवल मेट्रो से ही सक्सेसफुल वुमेन आए, ये ज़रूरी नहीं है। ये दिखाना है कि हमारे देश के कई छोटे छोटे कोने में से भी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही है, और उनके लिए प्रोत्साहन के रूप में हमने ये अवार्ड रखे। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, अब वुमेन्स डे है, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बड़ी एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्पेशली वुमेन, या जो आना चाहते हैं, कुछ अपना करना चाहते हैं? मैम, आपसे जानना और मुझसे? अच्छा, क्या मैसेज रहेगा जो बड़ी एंटरप्रेन्योर्स, स्पेशली वुमेन? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप जो भी करना चाहते हैं लाइफ में, अपना 100% दे के ही करिए। आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको हाउसवाइफ बनना है, आपको गर्लफ्रेंड बनना है, आपको माँ बनना है, आपको जो भी बनना है, आपका 100% देकर वो बनिए, एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वंडरफुल। मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, एक बहुत ही अलग दुनिया है, लेकिन एक बहुत ही फुलफिलिंग, चैलेंजिंग, सेटिस्फाइंग दुनिया है, एंड फॉर ऑल ऑफ दोज हु आर गेटिंग इनटू इट, वेलकम टू इट। एक बात कहना चाहूँगी, पूजा बेदी को मैंने इसीलिए आमंत्रित किया क्योंकि वह हर तरह से एक परिपूर्ण नारी है। अपना बिजनेस संभालती है, बच्चों का देखती है, खुद के लिए करती है। हम बोले ना, जैसे नारी तू नारायण। थैंक यू। We are very happy to have you here as our chief special celebrity guest, and we hope to see more of her at IBJA Ladies Day. You are the inspiration to all the women. And we have another lady here who has been instrumental in setting up the Golden Girl Awards, Reena Shukla ji, who has been helpful all throughout. Without her also, Golden Girl Awards would not have been possible. Thank you so much. Thank you so much. Thank you everybody. Bye bye. Thank you. सबको मेरा नमस्कार। मैं चेतन कुमार मेहता, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA, जो भारत की सबसे पुरानी एक एसोसिएशन है, 104 साल पुरानी। आज हमें बहुत फ़ख्र है और गर्व है कि आज हमने वुमेन्स इंटरनेशनल डे पे आज एक ऐसा अवार्ड रखा है, गोल्डन गर्ल्स अवार्ड, जो इस भारत का ज्वेलरी इंडस्ट्री का पहला अवार्ड है। और इस अवार्ड में हमने 11 मोस्ट प्रॉमिसिंग और सक्सेस की तरफ जाती हुई वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हमने ये अवार्ड दिया है। ये अवार्ड बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें सबको पता है आज ज्वेलरी हम जो भी बनाते हैं, ये ज्वेलरी हम वुमेन्स के लिए बनाते हैं और वो इस इंडस्ट्री की बैकबोन है। आज हमारी इंडस्ट्री में 30 से 40 और 50% आसपास वुमेन्स इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। और आज हमें ऐसा लगा कि हम कहीं ना कहीं वो नारी शक्ति को हम कहीं मिस कर रहे थे।
आज ये दिन हमने स्पेशल दिन चुना और 11 वुमेंस एंटरप्रेन्योर और मोस्ट प्रॉमिसिंग वुमेंस को आज हमने यहाँ सारा स्टार में अवार्ड दिया। और एक बहुत ख़ास बात ये कि हमने जब नॉमिनेशन चालू किया तो 102 नॉमिनेशन हमें मिले और हमारी जूरी ने इसमें से 11 सिलेक्शन किया और 11 भी इस हिसाब से सिलेक्शन हुआ है कि प्रॉमिसिंग आगे आने वाला उभरता हुआ सितारा और जो उभर रहा है उनको हमने एक प्रोत्साहन दिया है। इस प्रोत्साहन से पूरे भारत में महिलाओं को शक्ति मिलेगी और ज्वेलरी की तरफ और महिलाएं और मैन्युफैक्चरिंग में, रिटेलिंग में, होलसेलिंग में और ट्रेडिंग की तरफ हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर और हम आगे काम करेंगे। इस सोच के साथ हम इब्जा और हीरा जवाहरात कोलैबोरेशन के साथ ये अवार्ड हमने यहाँ किया। हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। I am extremely grateful and I am very honored on receiving this Golden Girl Award. I am very thankful to IBJA for taking this initiative and I am also thankful to all the jury members who selected me and thank you Almighty जिसने मुझे ये काबिल बनाया। ये जो जर्नी थी मेरी from last 17 years, it was a long and struggling journey, starting from doing research in gold markets, studying very minutely economic data, fundamental data, technical data, then preparing reports, blogs, writing articles, doing various other things, then also preparing various forecasting models, and lastly but not the least, then I completed my PhD, was awarded a doctorate degree on determinants of gold prices in different market scenarios. So ये जो मेरी hardship थी, finally it is paying me off today. I'm very happy holding this award in my hand. I'm very thankful to my family and those who have supported me in my professional career and those who have helped me to reach at this stage where I am holding this as a mark of my achievement. Thank you all of you and happy Women's Day to all the women who break their barriers and create history. Thank you. इतने सालों से महिलाओं को वो स्थान इस इंडस्ट्री में नहीं मिल पा रहा था जो स्थान उन्हें मिलना चाहिए और इसके लिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है 104 साल पुरानी संस्था है, हमने ये सोचा कि जो अपकमिंग और प्रॉमिसिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है हमारी इंडस्ट्री की, जिनको कभी भी इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ताकि उनको एक रिकॉग्निशन मिले, उनकी समाज में हिस्सेदारी बढ़े, लोग उनके काम को पहचाने, लोग जाने कि किस तरह से वो सारी चीज़ों को जूझते हुए एक सशक्त महिला की तरह आगे बढ़ रही हैं। और इसीलिए हमने ये इवेंट का आयोजन किया था और ये इवेंट अब हर साल होगा। हर साल हम 11 गोल्डन गर्ल अवार्ड को मनोनीत करेंगे। हमें इस बार 102 नॉमिनेशन मिले और 7 जूरी मेंबर ने इसमें से सिलेक्शन किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 9 अवार्ड कॉमन अवार्ड थे, मतलब 9 जन को 7 जूरी ने एक साथ में सिलेक्ट किया था, सिर्फ 2 के लिए हमें वोटिंग करनी पड़ी थी। और हम चाहते हैं कि हमारी इस इंडस्ट्री में वुमेन एम्पावरमेंट को एक अपना स्थान मिले और मैं इसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहूँगा जो इतने साल तक हम लोग कर रहे थे। आज हमें जेंडर इक्वलिटी में हिस्सेदारी करके हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और हम आप सभी के, मीडिया के, हमारे सारे विनर्स के, हमारे सारे ज्वेलरीज के सभी के आभारी हैं कि उन्होंने हमें और हमारे सारे स्पॉन्सर्स के आभारी हैं कि जिन्होंने हमें योगदान दिया और जिनके साथ की वजह से हम आज ये इतना बड़ा इवेंट कर पाए और उन 11 गोल्डन गर्ल्स को हम आइडेंटिफाई कर पाएँ जो हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले आगे के दिनों में निभाएंगे। थैंक यू। रीना शुक्ला, कन्वीनर ऑफ दिस गोल्डन गर्ल्स अवार्ड। ये एक्चुअली गोल्डन गर्ल्स अवार्ड हमने इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया कि एक एक्सक्लूसिव वुमेंस के लिए जो वुमेन एम्पावर है उनको हाईलाइट कर सके और उनका एक्सक्लूसिव अवार्ड फंक्शन इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया है। उससे वुमेंस को जो भी अपकमिंग एंड प्रॉमिसिंग लेडी है उनको इनकरेज मिला और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा पैन इंडिया से। नॉमिनीज़ भी 102 नॉमिनीज़ आए हुए काफ़ी पैन इंडिया से और इंटरनेशनल भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। एंड नेक्स्ट
future, definitely we are doing from next year we are doing every state and country wise we are organizing this same Golden Girls Award, and उससे वुमेन्स एम्पावर को इंकरेज मिल रहा है और वी आर वेरी हैप्पी फिर विथ ऑल द सपोर्ट्स ऑफ इब्जा एंड आवर इंडस्ट्रीज लीडर्स. थैंक यू सो मच.